This is not just a batch. This is a 2-year roadmap made by credible people with a quality-oriented mindset relevant to the UPSC exam. पहले हम राइट स्मार्ट लेंगे और फिर लॉज लेंगे और लाइव क्लास के अंदर आप हमारे सामने मोर देन 300 क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे इन राइट स्मार्ट एंड लॉज बोथ. Most people will say, सर अब क्या है, MCQ करो, प्रीलिम्स की तैयारी करो. सर, the nucleus of this exam is mains. अगर मैंने मेंस की तैयारी अच्छे से नहीं करी तो प्री क्लियर होने के बाद भी आई विल मिस आउट. एक इंसान जिसने खुद ने इस एग्जाम को दिया है, प्रीलिम्स क्रैक करा है, मेंस क्रैक करा है, इंटरव्यू क्रैक करा है, सर्विसेज में रहा है, अगर वो आपको पढ़ाएगा तो एटलीस्ट जब भी वो आपको पढ़ा रहा है तो वो सही चीज पढ़ाएगा. क्यों? क्योंकि उसे पता है कि एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है. मैं यहाँ पर थिंकिंग और एनालिसिस सीखूंगा. ये मैं तभी सीख सकता हूँ जब मेरा बेसिक सेट है. बट आज तक लाइफ में आप याद करके बताओ, आपसे किसी ने बात करी है कि पढ़ना कैसे होता है और सोचना कैसे होता है? अगर हम मेंस प्रिपरेशन को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं तो मेंस प्रिपरेशन विदाउट आंसर राइटिंग सेशन इज इनकम्प्लीट, राइट? तो आंसर राइटिंग में हम यहाँ पे आपको राइट स्मार्ट कराएंगे, जहाँ पे कि आपने पहले भी देखा होगा कि शिविन सर विल टीच यू आंसर राइटिंग टेम्पलेट थ्रू दी पास्ट ईयर क्वेश्चन ऑफ मेंस. वंस यू आर डन विद दैट, मोर देन 30 सेशन लाइव आंसर राइटिंग के मैं आपके साथ लूंगा. आप सोचिए, मैं दिसंबर 2027 में हूँ, मेरे सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हैं, मेरी मेंस की प्रिपरेशन भी कंप्लीट है और मेरे पास 6 महीने बचे हैं. अब आइडली मुझे कहना चाहिए, बच्चों हमारा काम हो गया, जाके पढ़ाई करो. बट दैट्स नॉट व्हाट वी डू. We hold your hand till the last stage, till the last day, and we work hard together. As I'm sure you can see from the roadmap, this is a true one-stop solution. चाहे foundation हो, prelims हो, mains हो, interview हो, even one-on-one mentorship support हो, we are doing all of that in this batch. Exactly 2 साल हैं to prelims 2028. And अगर इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, तो this is the time to start. Hello and welcome to Sarthi IAS. I am Dr. Shivan, and this is the official launch of our GS Foundation batch for UPSC CSE 2028. This batch is starting on the 16th of June. The class language will be English, and notes will be in both English and Hindi. This is not just a batch. This is a 2-year roadmap made by credible people with a quality-oriented mindset relevant to the UPSC exam. अब ये एक बहुत अच्छा roadmap तो है, पर आप कहोगे कि सर मैं आपकी बात क्यों सुनूं? To that, I'll say, take a look at our track record. Our entire faculty consists of people who have either appeared for the interview or cleared this exam. जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे 2 साल में जो भी बात करेगा, उसने प्री भी निकाला हुआ है, मेंस भी निकाला हुआ है, in most cases मल्टीपल टाइम्स निकाला हुआ है, and कई लोगों ने एग्जाम भी निकाला हुआ है. So we know what we're talking about. And our content is pure quality oriented material. और ये बात मुझे खुद नहीं बोलनी चाहिए. So I'll let my students say it. Here the feedback of our toppers. प्रीलिम्स के लिए सर साइंस टेक एनवायरनमेंट किया था आपसे, रिसोर्सेज यूज किए थे आपके सर. उसके बाद सर 2023 में जब शुरुआत किया था तो वरुण सर का लॉस देखा था, लाइव आंसर राइटिंग वाली चीज है, एंड सजल सर का टेम्पलेट्स वाला भी देखा था. I was part of H Sarthi actually. When Sarthi IAS was previously H Sarthi, I was part of the courses then. So post my prelims 2023, when I failed in 2023, I was looking for a comprehensive mains course that can be done, which would help me a lot in my 24 attempt. So something which I could have, which I'll be able to complete by December. So while looking for it, I found Varun Jain sir's MMP Plus, which was extremely good. I looked at it; it was extremely good, and then I took it, sir. Then unfortunately, I couldn't make it in 24 prelims. So for this year's prelims, I was looking for one-stop solution for science and tech, environment, economy as well. So obviously, I took your course, and I especially like the economics part, the microeconomics part. It was wonderful. I had taken PRP, which started in November. So I took that holistically from very day one to the till last, all the classes that took place. And then in mains, I had taken answer writing, that part with Shivin sir. Sir, MMP Plus, and this year I took Write Smart.
Sir, at that point, I had given one attempt and I flunked prelims. So I wanted something that will help me cover all the mains topics. So it was the right combination. I enjoyed those courses. I purchased the science and tech course. Yes, ma'am. I relied on that course for science and tech heavily. एस सीरीज से सर वेटरन्स वाले फीडबैक सर काफी हेल्प मिली इसमें आपकी जो गाइडेंस थी ना पर्सनलाइज गाइडेंस उससे काफी हेल्प हुई सर पिछली GS4 का भी पेपर ठीक गया है और जो वैल्यू एडिशंस पेपर में जो एक्स्ट्रा करना था ताकि थोड़ा सा और मार्क्स को फेच किया जा सके तो उसमें मैंने काफी हेल्प मिली और जो आपने बताया ना आपके जो फीडबैक थे फॉर एग्जांपल कि थोड़ा सा मैं बहुत ही छोटे पॉइंट्स लिख रहा था थोड़े से एलोबरेट करके लिखना था मैं क्लियरली याद कर सकता हूँ कि GS2 में अब की बार मैंने थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्रिप्टिव लिखा है एस्से कोर्स और करंट अफेयर कोर्स ऐसे जो मैं पहले लिख रही थी मेरा जो सबसे प्राइम इशू था वो लिंकेजेस का था जो आपने सॉर्ट करवा दिया और आपने एक मॉडल आंसर दिया था ऐसे का मैंने एज इट इज रेप्लिकेट कर दिया था मेंस में Yeah, sir, I was the student of MMP Plus this year after the prelims. And I had also watched Shivin sir's those 12-hour long sessions he used to take on before prelims. Those helped a lot. And I took a lot of help from the keywords you used to share on your Telegram group. I've used them extensively for the answer writing part because especially for the IR and stuff, I have just you gave a PDF that was like country-wise. There were like different keywords. Like for Africa, the question on digital partnership came. I just wrote every keyword I could remember from that PDF. So yeah. सर राइट मेंस ज्वाइन किया था अभी आपके सारे वो मतलब सारे GS1 तो पूरा देखा था GS3 में इकोनॉमी देखा था इंटरनल सिक्योरिटी देखा था एंड उस यस सर राइट स्मार्ट में GS2 उतना सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा था आप जो कीवर्ड्स बताते हैं ना स्पेसिफिकली वो था कि उस 2 महीने के टाइम पीरियड में इतना रिप्रोड्यूस कितना होता है वो मैटर करता है बट जैसे आपने वो बोला था कि मुंगेर कर कमेटी लिख के आना तो क्वेश्चन आया तो आई रोट मेंस टेस्ट सीरीज में और MMP में सर टेस्ट सीरीज तो सही में काफी अच्छा था मतलब चेकिंग वगैरह भी बहुत 3-4 दिन में हो जाता तो उतना दिन वेट भी नहीं करना पड़ता था I was part of your GS4 mains module and test series. Actually, पहले मुझे लगा था कि GS4 I can do it on my own. So I did not take any major coachings or test series. But then in my previous mains, I did not. I scored 109 in GS4, which was not very good. So I believe that I lacked writing practice, and I already knew you from some time. So I thought I'll join your test series, and it was very helpful indeed. Writing tests helped a lot, and especially what the tricks in the test discussions, what you used to tell me, that helped a lot. आपका environment और science and tech का कोर्स देखा एंड GS3 I was totally dependent on you so thank you so much sir मतलब I really liked watching your videos since the time you were an anonymous aspirant and then somehow आप मुझे बहुत relatable लगते थे I used to watch your videos और मुझे बस उस टाइम पे अच्छा लगता था I remember that first video जो आपका था you know how to clear prelims so that was the first video I watched. So GS3 especially internal security agriculture disaster management that was my source and the science and tech and the environment bundle program that I took for my 2024 attempt that was my first attempt and then I also took the help of MMP Plus because also I was pretty much lost where to gather the notes and content how to write answers so MMP Plus helped me a lot during my mains preparation. In my GS3 module as well as the QEP program for PSIR I had taken it. I would suggest that it was very good. It was very valuable during both my mains preparation and even currently during my interview preparation. I was enrolled in Sarthi's MMP Plus program. Then I also used the one-to-one mentorship. Then I used the interview guidance program. My own experience was that I didn't have a lot of main-centered content in 2023 because it was my first attempt and I was at loss that where should I get that material from. But then I remember that laws and the content provided by Varun sir was a lifesaver because it was precise and to the point and I could, especially for the main subject, I could really take all the points which were mentioned over there and in a very standard format replicated in my answer sheet. I was a part of Write Smart and a part of PSIR QEP, Quality Enrichment Program, immensely helped. Actually, Write Smart majorly helped in making those templates that are needed to quickly generate answer. And Quality Enrichment Program was that little bit of value addition in terms of
quotes and keywords and authors and their books. सर सारथी में तो सर स्टार्टिंग से हो, मतलब राइट स्मार्ट के तीन साल से कर रहा हूँ, लॉस 2 साल किया था, MMP भी हो, अच्छा था, मतलब उसके फीडबैक वगैरह भी अच्छे थे. Sarthi IAS, I have been affiliated through Sajal Sir's mains test series as well as mentorship program for the past 2 years. And last year also I was a part of IGP here. Overall experience at say what all things I have been affiliated with Sarthi has been very conducive, and there is very less friction, or I feel it is very hospitable in nature, and therefore I have been trusting it. मैंने MMP का मैं फुल प्रोग्राम मैंने लिया था. उसमें जो राइट स्मार्ट होता है शिवन सर का, सर सारथी की जो टेस्ट सीरीज है उसका जो एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है वो है लाइव इवैल्यूएशन. उसने मुझे बहुत हेल्प किया सर. I was part of the veteran test series in 2025 this year, and also the interview guidance program. The guidance that sir provided to me was very helpful in approaching the questions, in answering them, and also to have as many points as possible. Sajal sir has played a great role in my GS examination papers. फीडबैक आपने सुन लिया होगा, but these are not just names. They are stories. They are efforts, both on the student side and somewhat on our side. अब इतने सारे रैंकर्स हम सारथी IAS से कैसे निकाल पाते हैं? एक तो तरीका है कि इंटरव्यू गाइडेंस के बच्चे क्लेम कर लो, बट दैट इज नॉट व्हाट वी डू. जितने लोगों को आपने सुना, they've all studied at Sarthi IAS, studied from the teachers of Sarthi IAS and relied on the content of Sarthi IAS. And all of this comes down to our preparation philosophy. Allow me to share that with you. अब हमने एक 2 साल के रोड मैप की बात करी, एक 2-year प्रिपरेशन सिस्टम की बात करी, तो मैं उसकी बात आपसे करता हूँ. देखो, मैं भी कॉलेज में था जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, और मुझे कहा था किसी ने NCERT पढ़ लो और न्यूज़पेपर पढ़ लो, और मेरे 6 महीने वेस्ट हो गए और मैंने कुछ नहीं सीखा, बिकॉज आई डिडंट हैव अ रोड मैप इन फ्रंट ऑफ मी. सो वेदर यू जॉइन दिस बैच और नॉट, दिस इज द रोड मैप दैट विल गाइड यू टू सक्सेस, एंड लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू. सबसे पहले आई नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. सबसे पहले अगर मैं आज न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दूं तो मुझे समझ ही नहीं आएगा. आई डोंट नो व्हाट रेपो रेट इज, आई डोंट नो RBI करता क्या है, और मैं उसके आर्टिकल्स के नोट्स बना रहा हूँ. तो माई फर्स्ट जॉब इज टू इंश्योर कि मेरा फाउंडेशन सही हो. फाउंडेशन सब्जेक्ट्स करने का क्या मतलब है? पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर. ये जो UPSC के बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहले मुझे इसमें अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं. नाउ टाइम इज ऑन माई साइड, राइट? टाइम इज ऑन माई साइड. मेरे पास 2 साल हैं. वो जो 2 साल हैं उसमें पहला साल बेसिक्स पे जाना चाहिए. आई हैव सीन पीपल क्लियर द प्रीलिम्स, देन गिव मल्टीपल मेंस, sometimes give multiple interviews because they miss out on this stage. If you have the advantage of 2 years, use it. Don't let it slip. तो पहला साल इसमें जाएगा कि मैं अपना बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन सेट कर लूं. Once I'm done, अब मैं क्या करूं? Most people will say, सर अब क्या है? MCQ करो, प्रीलिम्स की तैयारी करो. सर, the nucleus of this exam is mains. अगर मैंने मेंस की तैयारी अच्छे से नहीं करी तो प्री क्लियर होने के बाद भी I will miss out. So I will have 6 dedicated months from July to December 2027 to prepare for mains. यहाँ पर मैं GS के सारे पेपर्स 1, 2, 3, 4 एंड essay डिटेल में पढ़ूंगा. मैं यहाँ पर थिंकिंग और एनालिसिस सीखूंगा. ये मैं तभी सीख सकता हूँ जब मेरा बेसिक सेट है. बट आज तक लाइफ में आप याद करके बताओ, आपसे किसी ने बात करी है कि पढ़ना कैसे होता है और सोचना कैसे होता है? This is the time for that. This is the time when you understand analysis, when you learn to think, when you learn to put your thoughts on paper. And उसके लिए we have Write Smart and laws right here. ये वो टाइम है जब हम मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, एनालिसिस करना सीखेंगे और अपने एनालिसिस को पेपर पे लाना सीखेंगे. This is where सारथी IAS specializes, और इसीलिए सारथी IAS से हर साल इतने टॉपर्स निकलते हैं. Once we're done with this, आप सोचिए मैं दिसंबर 2027 में हूँ, मेरे सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हैं, मेरी मेंस की प्रिपरेशन भी कंप्लीट है और मेरे पास 6 महीने बचे हैं. अब आइडली मुझे कहना चाहिए बच्चों हमारा काम हो गया, जाके पढ़ाई करो. बट दैट्स नॉट व्हाट वी डू. वी होल्ड योर हैंड टिल द लास्ट स्टेज, टिल द लास्ट डे, एंड वी वर्क हार्ड टुगेदर. सो द थर्ड फेज इज देन वी डू प्रीलिम्स प्रिपरेशन टुगेदर. अब कुछ प्रीलिम्स के लिए बचा नहीं है करने के लिए,
मे बी अ लिटिल बिट ऑफ करंट अफेयर्स इज लेफ्ट, बट फिर भी हम रिविजन साथ में करेंगे, हम लाइव MCQ सेशंस करेंगे, हम रिविजन सेशंस करेंगे, हम एक्टिव रिकॉल सेशंस करेंगे एट दिस पॉइंट टू एंश्योर दैट इवन आवर प्रीलिम्स प्रिपरेशन इज टॉप नॉच, कि आप जाओ तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर करो और आप मेंस रेडी प्रीलिम्स से पहले हो. दैट इज द आइडिया ऑफ दिस प्रिपरेशन सिस्टम. अब आप कहोगे सर हमारा प्रीलिम्स हो गया, अब तो हम कर ही लेंगे. नहीं, आपको अभी मेंस देना है. तो मेंस में जो करंट अफेयर्स अपडेट्स चाहिए, जो आंसर राइटिंग की टेक्निक्स एनहांस करनी है, जो वैल्यू एडिशन चाहिए, इवन दैट इज समथिंग वी आर विलिंग टू डू विद यू. सो टिल द वेरी लास्ट स्टेप, till you actually go to that mains hall, we're going to be there. And this is why this is not just a batch. It's a 2-year preparation system. As I'm sure you can see from the roadmap, this is a true one-stop solution. चाहे foundation हो, prelims हो, mains हो, interview हो, even one-on-one mentorship support हो, we're doing all of that in this batch. Now, a lot of people ask me कि sir, सारथी IAS से हर साल रैंकर्स आते हैं और आप हर साल आके बोल देते हो कि रैंकर्स अगले साल और बढ़ेंगे. In 2024, 175 selections. In 2025, 201 selections. And मैं पहले से कमिट कर चुका हूँ कि 2026 में ये नंबर और बड़ा होगा. तो ऐसा कैसे? And I just have one reason for it, and it's from the board behind me. The team and the faculty that we have here. Everyone has appeared in the interview. There are people who have cleared the exam, some who have appeared in multiple interviews, and we genuinely love what we do. So we work hard at what we do. Let us meet the faculty who's going to teach you in this course. Hello friends, this is M. Puri, faculty for Polity, Governance and Social Justice at the Saarthi platform. And I believe you've already been told that we'll be now starting a foundation course for 2028 Civil Services Examination. And I'll be dealing obviously with GS Paper 2, these 3 core concepts, Polity, Governance and Social Justice. GS Paper 2 में बेटा एक और component होता है IR, which constitutes around 20% of the syllabus, or this will obviously be taken by Varun sir. Now, you know, because this is a foundation course for 2028, so obviously many of you are very young, you will be probably not even graduates at this juncture. तो हमारा अप्रोच ये रहेगा बेटा कि इस कोर्स को थोड़ा सा ना हम धीरे चलाएं. धीरे मतलब कि जैसे अभी फाउंडेशन कोर्स 2027 का भी चल रहा है, तो उसमें थोड़ी सी स्पीड हमें थोड़ा एक्सेलरेटर पे पेडल रखना पड़ता है, बिकॉज यू नो टाइम इज लेस, राइट. बट इन योर केस वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, एंड मेनी ऑफ यू आर वेरी यंग ऑल्सो, मेनी ऑफ यू आर प्रोबेबली जस्ट डूइंग योर ग्रेजुएशन, अभी स्कूल से बाहर आए हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर हो. सो नेचुरली ग्रास्पिंग द कॉन्सेप्ट्स रिलेवेंट फॉर एन एग्जामिनेशन विच इज द प्रीमियर एग्जामिनेशन ऑफ द कंट्री, सबसे बड़ा इम्तिहान है इस देश का, तो वो फिर उनको प्रॉपरली समझने में थोड़ा टाइम तो आपको लगेगा. तो इसलिए हमारी कोशिश भी ये होगी कि इस कोर्स के अंदर जो जब मैं पढ़ाऊंगा, और पॉलिटी के अंदर बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कि जो उनकी जो क्लैरिटी है वो आपको पूरी तरह से मिले, ताकि उस क्लैरिटी के बेसिस पे आप आगे जाकर जो डिफिकल्ट और मोर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएं. तो थोड़ा सा हम इसको स्लो ही रखेंगे, स्लो ही चलाएंगे, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रोमाइज ना हो. ठीक है. अब बेटा, when we say that I'm going to be like, what does a foundation course for these subjects, polity, governance, social justice, what does it mean in my context, in the context of the topic I'm teaching? सबसे पहले तो बेटा आपको फंडामेंटल्स बिल्ड करने बड़े जरूरी है. ये मैं बात हर जगह कहता हूँ. नॉर्मली यू नो यू मस्ट हैव कम अक्रॉस, इफ यू आर डूइंग योर इंजीनियरिंग वगैरह, तो जो आपके फिजिक्स मैथ्स के टीचर होते हैं, तो वो नॉर्मली ये बात कहते हैं कि अगर आपने फिजिक्स मैथ्स में अच्छे गुरु हैं आपके, हुए होंगे आई एम श्योर, राइट. तो वो ये बात बोलते हैं कि अगर आपने फिजिक्स और मैथ्स में अगर एक्सेल करना है तो आपके फंडामेंटल्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं. बेटा, इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर साइंसेस सब्जेक्ट्स ना, तो इट इज इवन मोर ट्रू फॉर योर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एटसेट्रा. यहाँ पे भी फंडामेंटल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है. यू नो व्हेन आई टॉक अबाउट फंडामेंटल्स में तो बेटा स्टार्ट तो यहीं से करेंगे. संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब ही क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉज हैं, तो लॉज तो पार्लियामेंट भी बनाती है, तो उनमें फ़र्क क्या होता है? ठीक है. वेरी कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स जो आपके रोज़मर्रा की एक्सपीरियंस में आपको इनकाउंटर करते हो, टर्म्स यू मे हैव इनकाउंटर्ड. यू नो व्हाट इज़ द पार्लियामेंट, यू नो व्हाट इज़ द लोकसभा, व्हाट इज़ द राज्यसभा, ये क्या है, ये 2 हाउस क्यों हैं पार्लियामेंट के. बड़े फंडामेंटल पोस्ट से कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपके. और ये तो मैं बहुत सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ. मैनी ऑफ दीज थिंग्स यू मस्ट हैव डन इन योर 8th, 9th, 10th classes also, right? But then probably you have forgotten about them. And of course, now we will be doing them at a level this is relevant for the civil services. तो थोड़ा सा फर्क तो आएगा उसमें, राइट. लेकिन जैसा मैंने कहा, जब तक आपके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होंगे, आप मेरे सब्जेक्ट के अंदर उतना हाईली स्कोर नहीं कर पाओगे.
ठीक है, फंडामेंटल्स पे हमारा फोकस होगा इन द फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, दूसरी चीज ये है बेटा कि इफ यू, बिकॉज न्यूज़पेपर रीडिंग इज असेंशियल फॉर योर सिविल सर्विस प्रिपरेशन, राइट। और न्यूज़पेपर में बेसिकली बेटा न्यूज़ किस चीज़ की आती है? यही तो आती है, पॉलिटी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस। और है क्या न्यूज़पेपर? एक पेज होता है इकोनॉमिक्स को डेडिकेटेड होता है, इकोनॉमिक्स की जो न्यूज़ है। बाकी सारी न्यूज़ क्या है? कोई नया लॉ बना है, कोई नया जजमेंट आया है, कोई सरकार ने कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट की है, कहीं पे कोई करप्शन हो रही है, कहीं पे गवर्नेंस का डेफिसिट हो रहा है, कहीं पे डेवलपमेंट कम हो रही है, कहीं पे सोशल जस्टिस नहीं है। तो यही चीज़ तो होती है। इनफैक्ट अ न्यूज़पेपर इज आई वुड से अ बुक पब्लिश्ड ऑन GS पेपर 2 विद अ फ्रेश एडिशन कमिंग एवरी डे, करेक्ट? So, given that fact, newspaper is basically something which I say is most relevant for, of course, I'm not saying it's not relevant for GS paper 3, उसके लिए भी है, उसमें इकोनॉमिक्स वगैरह, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, बट इट इज मोस्ट रिलेवेंट फॉर माई पेपर। ऑलमोस्ट अराउंड 70 to 80% ऑफ द न्यूज कवरेज in the newspapers deals with the subjects, including of course IR also, international relations, उन्हीं से तो डील करता है आपका। प्रॉब्लम क्या है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हो ना, तो बहुत सारी आपको चीज़ें समझ नहीं आ पाती। वो क्यों नहीं समझ आ पाती हैं? क्योंकि आपकी जो फाउंडेशनल और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और IR के भी, जो पनु सर आपको पढ़ाएंगे ऑब्वियसली, राइट, वो आपके अभी क्लियर नहीं है, राइट। सो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बहुत दिक्कत आती है, 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं, राइट। सो विद द फाउंडेशन कोर्स वन थिंग भी, पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि न्यूज़पेपर रीडिंग शुड बिकम अ वॉक इन द पार्क फॉर यू। मतलब आज कितनी आसान हो जानी चाहिए कि नॉर्मली जो स्टूडेंट्स, इनको जिनके फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत कम है, तो वो न्यूज़पेपर रीडिंग में कम से कम 2.5-3 घंटे लगा देते हैं। एंड एनी पर्सन हु स्पेंडिंग मोर देन 1-1.5 hours ऑन द न्यूज़पेपर ऑन अ डेली बेसिस इज एक्चुअली ऑन अ सुइसाइडल पाथ। इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। हमें कोशिश करनी है कि हमें पहुंचना है कि वी शुड नॉट बी स्पेंडिंग मोर देन 1 hour ऑन द न्यूज़पेपर, एंड दैट विल बी पॉसिबल वन when you read the newspapers consistently. Obviously you will increase your reading speed also, you will improve your thought process, your vocabulary will also improve, okay? And because you understand the concepts on which the news is coming, इन्हीं चीज़ों पे न्यूज़ आती है बेटा, जो कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा। तो न्यूज़पेपर रीडिंग becomes, as I said now, it becomes a cakewalk, it becomes a walk in the park, बहुत आसान हो जाए। और अगर न्यूज़पेपर समझ आना शुरू हो गया तो ये चैप्टर तो बेटा अपने आप ही समझ आता है, ठीक है। और इन सब चीज़ों के बेसिस पे एक फाउंडेशन ले डाउन करनी है आपके लिए, ताकि जो आपके मेंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, बिकॉज कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, मोर कॉम्प्लेक्सिटी इन द कॉन्सेप्ट, मोर डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग देम ऑल्सो, राइट। तो ये जो फाउंडेशन कोर्स है, ये आपको एक प्लेटफॉर्म देगा कि जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड हुए, इसी सब्जेक्ट से रिलेट करते हुए जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको आसानी से हो पाए, एंड यू आर इन अ पोजीशन टू आंसर क्वेश्चन नॉट जस्ट इन द प्री बट ऑल्सो इन द मेन्स। हाँ, फाउंडेशन कोर्स में मेंस का एलिमेंट नेचुरली थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि फाउंडेशनल कोर्स है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो उसमें होगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा फोकस नेचुरली वो प्रीलिम सेंट्रिक होगा, क्योंकि थोड़ा हमें आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाना है, बिकॉज यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, राइट, एंड यू आर वेरी यंग टू अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प ऑल द कॉन्सेप्ट्स एट दिस जंक्चर। तो वील मूव समवॉट स्लोली विथ यू, राइट, एंड विद दैट इन माइंड, होप टू सी यू इन the foundation course of 2028 civil service examination. Hello everyone, I hope all of you are doing good. My name is Aditya Kalia and I take economics at Sarthi IAS. I welcome you all to this special batch that we have for people who are preparing for 2028 attempt. You will be giving your exam in around 2 years, so you have got sufficient amount of time. Economics as a subject, it requires a little bit more amount of time, not because it is difficult, but simply because everything that you see around you has some or the other dimension of economics. रोज अखबार खोलते हैं, रोज कोई ना कोई नई इकोनॉमिक्स की न्यूज़ होती है, कोई नया डेवलपमेंट आ जाता है। तो इस वजह से हमको ऐसा माइंड में लगता है कि इसका स्कोप बड़ा वास्ट है। ऐसा कुछ है नहीं, चैप्टर्स हमारे उतने ही हैं, चाहे आप 1 साल के लिए प्रिपेयर करो, चाहे आप 2 साल के लिए करो, चैप्टर्स हमारे उतने ही हैं। हाँ, हमको समझने के लिए टाइम ज़्यादा मिल जाता है। जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, we'll be focusing on both concepts as well as facts. Concepts भी important है, facts भी important है, एग्जाम में दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं। लेकिन हाँ, अगर concepts समझ के facts याद करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी अच्छी पोजीशन के अंदर आएंगे। इसी तरीके से हम अपनी अप्रोच क्लास के अंदर रखेंगे कि I'll be talking about concepts most of the time, but then I'll also add them up with facts also, so that you are comfortable in both. और अगर हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, अगर हमारा बेस स्ट्रांग है, तो जो अखबार में नए फैक्ट्स रोज आएंगे वो हम इजीली एब्जॉर्ब भी कर पाएंगे। और अगर ठीक ठाक हम प्रिपरेशन कर रहे हैं,
अगर हम करंट अफेयर्स के साथ रेगुलरली अपडेटेड हैं, अब्रेस्ट हैं, तो देन वी विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल इन दिस सब्जेक्ट. So I hope that I'm able to make you people comfortable. I think I have a decent amount of experience. I can say that with some sort of authority also. I hope that you people are going to enjoy these classes. Hello बच्चों, myself Himanshu Khatri, 2014 batch IRS, and since 2020, my passion has driven me into teaching. I'm really passionate about teaching. ऐसे नहीं कह रहा हूँ, क्लासेस ना होगे देखो पता चल रहा है, ठीक है ना. तो पैशन को कभी आप वो नहीं कर सकते, हाइड नहीं कर सकते, नकली नहीं बना सकते. खैर, तो वो तो क्या है, मेरी बात हुई. अब करते हैं आपकी बात या आपके काम की बात. मैं आपके लिए जो सब्जेक्ट्स लूँगा 2028 बैच जो हम लॉन्च कर रहे हैं उसके लिए AMAC, जिसको हम कहते हैं एंशेंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, एंड साथ में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, राइट. सो देयरफॉर दीज आर दी सब्जेक्ट्स दैट आई विल बी टीचिंग. शुरुआत हम करेंगे किससे? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है. एंड क्यों शुरुआत करेंगे? क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो किरदार हैं, द कैरेक्टर्स विच आर देयर इन MIH, सो यूजली पीपल आर अवेयर अबाउट इट, है ना, द नेम्स ऑफ द प्लेसेस, द लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड, सो स्टूडेंट फील्स अ सेंस ऑफ फेमिलियरिटी, राइट. 1947 in terms of history has not been very far away, right? So that is how it is. Plus our present constitutional system, it is also inspired by the constitutional scheme of things जो कि अंग्रेज़ों के समय पे बना था, ठीक है. तो इसकी वजह से MIH is one of a very good way, one of the very good subject to start your UPSC preparation, ताकि आपका एक smooth transition हो जाए from non-UPSC life to the UPSC, ठीक है. एक और इसके अंदर चीज़ें जैसे AMAC जो है, ठीक है, तो AMAC एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ये आपके प्रीलिम्स और मेंस के अंदर कॉमन सब्जेक्ट्स रहते हैं, ठीक है. तो जो AMAC है उसको हम थोड़ा सा बाद में करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी एटसेट्रा होती है वो रिलेटिवली टफ होती है, ठीक है. तो हर चीज़ को समझ के हमने पढ़ना है. एंड एक बार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमको आ जाए एज अ स्टूडेंट तो फिर हम AMAC की टर्मिनोलॉजी को भी डील कर लेते हैं. कॉन्फिडेंस रहता है, अरे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हमने देख लिया है, वर्ल्ड हिस्ट्री हमने देख लिया है, पोस्ट इंडिपेंडेंस देख लिया है, तो AMAC क्यों नहीं देख सकते, ठीक है. तो देख मतलब ऐसा वो मैं नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली यही ऑर्डर रहेगा, बट अकॉर्डिंगली थोड़ा सा एक गैप के बाद हम AMAC को करेंगे, ठीक है. स्टार्ट हम MIH से करेंगे. These two subjects, AMAC and modern Indian history, they are what you call as, they come in prelims also and they come in mains also, ठीक है. तो उस दृष्टिकोण से हम इन चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे. दूसरा वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ये सिर्फ मेंस के अंदर आता है, बट खुद में तो पूरा सब्जेक्ट है. तो जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पढ़ेंगे तो हम उसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि एक फाउंडेशन लेवल से मेंस के लेवल तक जिस तरीके से हम AMAC में और हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पहुंचने की कोशिश करेंगे उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी मेंस लेवल तक एक्चुअली पहुंचने की हमारी कोशिश एक रहेगी, ठीक है. फाउंडेशन जो है इट इज़ गोइंग टू बी कॉमन फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. हमारा पढ़ाने का तरीका ऐसा नहीं है कि सेपरेटली हम फाउंडेशन सेपरेटली हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं और सेपरेटली मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो फाउंडेशन होता है वो प्रीलिम्स के लिए भी वही सेम फाउंडेशन होता है जो मेंस के लिए सेम फाउंडेशन है. क्योंकि प्रीलिम्स क्या है, इट्स जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन, है ना. मेंस में भी इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन, बट जो उसका कोर बेस है फाउंडेशन दैट इज कॉमन टू बोथ, ठीक है. तो ऐसा हम फाउंडेशन करेंगे. उसके बाद देन वील मूव ऑन टू व्हाट यू कॉल एज मेंस लेवल, ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट का बेस ऑलरेडी बन चुका है एंड देन द स्टूडेंट इज लुकिंग एट मेंस थिंग्स, ठीक है. तो दैट इज द वे वी आर गोइंग टू कवर इट. 2-3 चीज़ें इसके अंदर आती हैं, जैसे इफ आई टॉक अबाउट सोर्सेस, सो बेसिकली देयर इज गोइंग टू बी ओनली वन सोर्स and that is the source which we are going to provide you. That is the source which I have crafted, right, with my own effort, right, by looking at multiple books etc. Because मैं आपको इस तरीके से परेशान नहीं करूँगा कि आप जो कोचिंग का सोर्स है वो भी पढ़ें, प्लस आप 3-4 टेक्स्ट बुक्स और पढ़ें, प्लस आप NCERT भी पढ़ें. So there is only one source which is required and that is Sarthi's source, right, Himanshu Khatri's source, ठीक है. तो ये कोशिश एक्चुअली रहेगी, ठीक है. कुछ और आपको देखने की जरूरत नहीं है. हाँ, NCERT आपको देखना है तो मुझे लगता है कि किसी भी टीचर के लिए ये एथिकल नहीं है कि वो बोले कि आप NCERT मत पढ़ो, ठीक है. बट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप NCERT पढ़ो तो NCERT जब हमारा बैच ख़त्म हो जाए
उसके बाद आप पढ़ लो, बहुत कम टाइम में हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटा भी नहीं लेगी एक एनसीईआरटी, ठीक है। 1 से 2 घंटे के बीच में आपकी एक एनसीईआरटी हो जाएगी, ठीक है। बाद में करोगे तो जल्दी हो जाएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हो, आप ऑलरेडी फाउंडेशन कर चुके हो, तो आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। बाद में करोगे तो आपका ही समय बचेगा, मतलब दैट इज़ माई रिक्वेस्ट, माई सजेशन, इट इज़ योर कॉल फाइनली, ठीक है। बट ultimately there is going to be only one source which is going to cater to what you call as all the previous year questions and potential FYQs, that is future year questions of both the prelims as well as mains, right? So there is going to be only one source, ठीक है। तो नहीं तो हमारे टाइम पे या फिर मतलब आज के समय पे भी होता है कि टीचर जो है मल्टीपल सोर्सेज बता देते हैं, कोचिंग का भी सोर्स दे देते हैं, एनसीईआरटीज भी बोल देते हैं, फिर बोल देते हैं ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, राइट। यहाँ पे हमारे केस में आई वुड से कि भाई न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री के केस में आचार्य अर्जुन देव जी की जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो अच्छी है, ठीक है, तो वो मैं मना नहीं करता हूँ, ठीक है। बाकी अदरवाइज जो है हमारा सोर्स ही लार्जली रहेगा एंड न्यू एनसीईआरटीज एक्चुअली रहेंगी। तो ये सोर्सेज को रिलेटेड है। टोटल नंबर ऑफ क्लासेस जैसे हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के स्टार्ट करें तो उसके बता देता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 35 से 36 हमारी क्लासेस रहेंगी, ठीक है। और 3 आवर्स से लेकर 3 आवर 20 मिनट्स तक भी कभी कभी खिंच जाता है, ठीक है। तो वैसा रहेगा, ठीक है। आप ब्रॉडली 3 से 3.5 आवर के आप क्लास मान के चलो, राइट। एंड मेरी क्लासेस फन होती हैं, बोर नहीं हो गए। अभी मैं बात करते हुए थोड़ा सा सीरियस लग रहा हूँ, ठीक है, बट वो डिपेंड करता है ना क्या बात कर रहे हैं। तो अच्छे से पढ़ेंगे, वाई पे फोकस करके पढ़ेंगे, ठीक है। हर एनालिसिस पे हमारा फोकस रहेगा। फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट है बट उसको हम सेकंड इम्पॉर्टेंस लेवल पे रखेंगे, नंबर 1 इम्पॉर्टेंट लेवल पे हम रखेंगे अपने एनालिसिस को, अपने वाई को। हिस्ट्री का मेरा टारगेट यही है कि यूजुअली जो हिस्ट्री को एक बोरिंग और एक स्मैटरिंग ऑफ फैक्ट्स की तरह से समझा जाता है, ये परसेप्शन उसकी है, इस परसेप्शन को मुझे ब्रेक करना है, ये मेरा लाइफ में पर्सनल मिशन है, ठीक है। अभी तक जो स्टूडेंट से फीडबैक मिला है, लग रहा है कि हाँ डेफिनेटली मैं उस बात पे हूँ एंड काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। आगे भी यही कोशिश रहेगी, इन फ्यूचर ऑल्सो दिस विल बी माई फोकस, दैट हिस्ट्री इज़ नॉट अ स्मैटरिंग ऑफ फैक्ट्स, हिस्ट्री इज़ अबाउट लॉजिक। आई हैव फाउंड लॉजिक्स इन हिस्ट्री, आई हैव फाउंड formulas in history, right? So therefore I will apply doctrine of reason, rationalism, logic adequately to the subject of history, and I'll make that subject interesting for you. That is my belief, that is my faith, that is my effort, right? So that is going to be the focus. Apart from this, classes कैसे होंगी, आपको मैं एग्जाम्पल दूँ तो you'll be getting क्या क्या आपको मिलेगा। एक तो you'll be getting the source, आपको मिलेगा पूरा चैप्टर्स मिलेंगे, प्लस लेक्चर वीडियोस के साथ साथ जो कि हमारी लाइव होंगी, यू विल ऑल्सो बी सीइंग मी डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क विद माई ओन हैंड्स इन द क्लास। तो दिस इज लाइक जस्ट वन एग्जाम्पल। तो दिस इज वॉट यू आर गोइंग टू सी, राइट। लॉट ऑफ फ्लो चार्ट्स विल बी मेकिंग लाइक दिस, right? It is going to be very, very logical, right? It is going to be a mix of, this content and this type of content, right? Dictation we do not do in online. So therefore, what I have done is this, right? So a lot of these things, okay, they will be made on the spot, live, right? So therefore, that is how it is going to be. And you can, if you want, you can note down simultaneously. कभी-कभी मेरी spelling mistakes भी मिल जाएंगी आपको इसमें, ठीक है? So that is how it is going to be. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे। एंड टाइम है आपके पास, यू आर अपियरिंग फॉर 2028, पर आपके पास टाइम नहीं भी है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो यूपीएससी के अंदर आते हैं, दे आर रफली अराउंड, यू कैन काउंट, डेफिनेटली यू कैन काउंट मोर देन 17, राइट। सो देयरफॉर येस, यू हैव टाइम विद यू, बट दैट डज नॉट मीन दैट वी शुड नॉट बी डिसिप्लिन्ड, वी शुड नॉट बिकम कैजुअल, ठीक है। तो आओ साथ में पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं, चैलेंज लेते हैं कि हिस्ट्री को हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, यूपीएससी को हम क्रैक कर सकते हैं, कैसा रहता है। सो ज्योग्राफी एंड मैपिंग, इट मेक्स अप अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सब कह रहे हैं कि 2026 प्रीलिम्स में बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं इससे, बट ज्योग्राफी एंड मैपिंग के कम क्वेश्चंस का भी नंबर आपको पता है कितना है? इट इज नॉट अ सिंगल डिजिट नंबर, इट इज 11। So even though यहाँ से कम questions आए हैं, it is still making up 10% part of your prelims paper.
मेंस में भी अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी से मेंस में जीएस पेपर 1 में तो क्वेश्चंस आते ही हैं, एटलीस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस रहते हैं, बट यहाँ पे जो आप पढ़ोगे many of the questions of GS3 you will also be able to solve those questions using the information that you study over here. So that makes geography a very foundational subject for UPSC. Now यहाँ पे जो geography होता है, we have physical geography, we have human geography and then we have mapping section. यहाँ पे physical geography it makes up the base of the subject. अगर किसी भी बिल्डिंग का बेस बहुत स्ट्रांग है देन उस बिल्डिंग पे आप चीज़ों को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हो, राइट? अगर फाउंडेशन ही बिल्डिंग का वीक है तो बिल्डिंग जो है बहुत जल्दी गिर जाएगी. सो यहाँ पे हमारा एक्सेसिव फोकस रहेगा दैट फिजिकल ज्योग्राफी आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए. नाउ फिजिकल ज्योग्राफी इट इज़ हाईली कॉन्सेप्चुअल एंड ऐसे कॉन्सेप्ट्स की एक बार अगर आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया देन you will not have to read it separately any other time. So intention यही रहेगा कि एक ही बार में कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए कि बाद में उसको पढ़ के टाइम वेस्ट ना करना पड़े. And once these concepts are strong enough, you will be able to better relate human geography and the mapping aspect. ठीक है? Now यहाँ पे आपको एक बहुत मेजर बेनिफिट मिलता है कंपेयर टू समवन हु इज प्रिपेयरिंग ओनली फॉर 1 ईयर. आपके पास टाइम है, राइट? नाउ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड मैपिंग सेक्शंस दे हैव सर्टेन फैक्चुअल एलिमेंट्स. सो आपके पास इतना सारा टाइम रहेगा, आप आराम से थोड़ा थोड़ा करके इन चीज़ों को याद भी कर सकते हैं. ठीक है? नाउ मैपिंग पे की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, मैपिंग में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को कि इतनी सारी चीजें हैं, मैप को देख के ओवरवेल्म हो जाते हैं, देयर आर सो मेनी वर्ड्स. बट मैप को हमें एक कॉमिक बुक की तरह ट्रीट करना है. कॉमिक बुक्स में क्या होता है? देयर इज प्रेजेंस ऑफ पिक्चर्स, देयर इज प्रेजेंस ऑफ वर्ड्स, राइट? सो आप पिक्चर्स देखते हो और कैरेक्टर्स जो हैं, कैरेक्टर्स ड्रॉन होते हैं, कैरेक्टर्स कुछ चीजें बोल रहे हैं जिससे हमें उन कैरेक्टर्स के बारे में समझ आती हैं चीजें. सो सेम मैनर में जो मैप्स होते हैं, मैप्स में देयर आर पिक्चर्स एंड उन पिक्चर्स पे कुछ लिखा हुआ है. सो इट्स बेसिकली लाइक द कंट्री सेइंग माय नेम इज इंडिया and I have some important cities like Delhi, like Mumbai, like Kolkata, like Chennai, right? So वो pictures अपने बारे में आपको information दे रही हैं बोल के या words के through. So इसी manner में हम अपने जो mapping की classes हैं उनको भी follow करेंगे. Mapping के जो notes हैं वो आपको tabular form में notes, very crisp notes will be provided, जिनमें सब में मेरे जो hand drawn maps हैं वो आपको मिलेंगे ताकि जो भी factual information है उसको आप बहुत आसानी से relate कर पाओ with the picture, with the map. Fine? So that is how we'll be moving forward with geography and mapping. तो दोस्तों अगर एथिक्स और ऐसे की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं ये आपके मेंस के स्कोर में, है ना? आपने सुना भी होगा कि एथिक्स ऐसे और ऑप्शनल से रैंक बनती है, अच्छा स्कोर आता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों ही पेपर में जो रेंज ऑफ मार्क्स है ना वो बहुत ज्यादा होती है. कई बच्चों को 130 140 नंबर भी आते हैं और कई बच्चों को 80 नंबर पे भी यूपीएससी टिका देता है. तो आप देखिए यार, एक ही पेपर में 50 60 नंबर का गैप है और अगर एक ही पेपर में इतना बड़ा गैप है तो आप बाकियों से काफी पीछे हो जाते हैं. इसलिए ऐसा कई बार हुआ है, जितने भी आपने टॉप रैंकर का नाम सुना होगा वो इसलिए होता है क्योंकि एथिक्स और ऐसे में कई बार उनको बहुत बड़ा जंप मिलता है अपने आंसर्स में, अपने मार्क्स में, और इसकी वजह से बहुत टॉप रैंक उनको आ जाती है. तो दोस्तों क्यों हम ऐसा हो रहा है ना? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो नेचर है एथिक्स और ऐसे का वो थोड़ा सब्जेक्टिव है ना? अभी सब्जेक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि हम जो मन में आएंगे वो लिख देंगे, है ना? आप देखिएगा एक बार अपने एथिक्स के और ऐसे के जो सिलेबस यूपीएससी ने दे रखा है नोटिफिकेशन में, आप देखिएगा यूपीएससी का नोटिफिकेशन क्या कहता है एथिक्स का? कहता है कि हमारी सोसाइटी में जो भी कुछ आसपास हो रहा है ना, उसमें आपको एथिक्स ढूंढनी है ना? यही हम काम करेंगे. अभी आपने देखा कि नीट का पेपर कैंसिल हो गया, तो आपको देखना है कि नीट का पेपर कैंसिल हो रहा है तो इसके एथिकल डायमेंशंस क्या हैं. आप ये देखिए, मतलब अगर सरकार पेपर तरीके से नहीं करवा पा रही है बार बार तो इसका सरकार की क्रेडिबिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वो मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट सिस्टम हो पाएगा हमारी कंट्री में? क्या लोगों को ट्रस्ट रहेगा एग्जामिनेशन सिस्टम पे? और इसका बहुत दीर्घकालीन जो कॉन्सिक्वेंस है, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस है, वो क्या होने वाला है? तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम करंट अफेयर को देखें तो हम ये देखें कि
इसके एथिकल डायमेंशंस क्या हैं, है ना, और वही आप और हम मिलके करेंगे। तो एथिक्स जब हम पढ़ेंगे ना तो एथिक्स को रटेंगे नहीं, एथिक्स को समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उनमें एथिक्स क्या है। और जब आप ऐसा करने लग जाएंगे तो आपके आंसर्स में करंट अफेयर के एग्जाम्पल भी आने लगेंगे, आप आर्गुमेंट भी देने लगेंगे, और वही हम काम एथिक्स में आपके संग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड करने में करने वाले हैं। और ऐसे अगर ऐसे की बात करें तो देखिए, ऐसे आपने लिखे होंगे, यूनिवर्सिटी में लिखा होगा, कॉलेज में लिखा होगा, लेकिन वहां पे जो ऐसे लिखते हैं और यूपीएससी में ऐसे लिखते हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और ये अंतर आता है क्योंकि यूपीएससी का जो ऐसे है ना वो डिमांड करता है कि थोड़ा एनालिटिकल हो, थोड़ी डायमेंशन अच्छे से खुली हो, है ना। और इसके लिए हम आपके संग मिलकर डिस्कस करेंगे कि स्पेशली जब फिलोसफिकल एसेज आ रहे हैं, आप पेपर देखिएगा तो आप देखेंगे कई ऐसे ऐसे कोटेशन क्लियर रखे होते हैं जिनका बस मतलब ही खाली समझ में आता है। अब उस पर 10 पेज का ऐसे कैसे लिखेंगे, कैसे अपने आइडियाज को बिल्ड करेंगे, है ना। और यही डिफरेंस है जो हम जनरली कंटेंट बेस्ड ऐसे लिखते आए हैं अपने यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में, है ना। कंटेंट बेस्ड मतलब डेमोक्रेसी के ऊपर लिख दिया, तो डेमोक्रेसी हमने अच्छे से पढ़ रखा है, उसको लिखना थोड़ा आसान होता है। लेकिन यही मैं आपको पूरी कोटेशन दे दूं तो उसमें 1, 10, 12 पेज पढ़ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है ना लिखने में। तो हम उस चीज पे काम करेंगे आपके संग। कैसे करेंगे आपको मैं बताऊंगा कि जो फिलोसफिकल ऐसे होता है उसको अप्रोच कैसे करना है, कैसे उनको अलग अलग डायमेंशन से हम तोड़ सकते हैं, और कैसे जो हमारी एग्जिस्टिंग जीएस की नॉलेज है, जो आप GS1, GS2, GS3 और बाकी GS4 के पेपर्स में जैसे पढ़ेंगे, तो उस कंटेंट का आप ऐसे ही राइटिंग में कैसे यूज करने वाले हैं, वो आप और हम मिलकर डिसाइड करेंगे कि यार हम ऐसे यूज करेंगे, ऐसे यूज करेंगे। तो ये क्योंकि ऐसे ना केवल पढ़ाने से नहीं होता, ये करने से आता है, क्योंकि ऐसे ना राइटिंग का एग्जाम है। आप यूपीएससी का देखिए नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। मतलब इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि जो हम सोच रहे हैं ना उसको कम से कम ढंग से एक्सप्रेस कर पाए। तो ये लिखने का बड़ा एग्जाम है, हमारी सोच को पेपर पे, क्योंकि आप बनोगे भी तो ब्यूरोक्रेट, आप अपने आइडियाज को लिखित फॉर्म में दोगे कि नहीं दोगे मिनिस्टर साहब को या पब्लिक को। तो लिखने पे बहुत बड़ा जोर है कि हमको अच्छा लिखना आना चाहिए, और हम उसी की आपके साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा कि अप्रोच एथिक्स और ऐसे में क्या रहने वाली है, और कैसे जब हम इन अप्रोचेस को फॉलो करेंगे तो वी कैन होप फॉर ग्रेट मार्क्स। जैसा कि साल आप देखेंगे टॉपर्स के आते आए हैं और बहुत अच्छी रैंक भी उन्होंने ली है जितने भी कोर्सेज में मैंने पढ़ाया है। So in your foundation batch, I will be covering 2 things. One is international relation and second is live answer writing session. देखिए, when we talk about the international relations, सबसे पहले आपको ये समझना है कि it is getting important for the prelims exam as well. अब IR खाली मेंस GS2 में नहीं आता है। IR के क्वेश्चन अगर आप प्रीलिम्स 2026 का पेपर देखेंगे तो 8 क्वेश्चन के आसपास यूपीएससी प्रीलिम्स में भी IR के पूछ रहे हैं। तो हम IR जब करेंगे तो प्रीलिम्स को भी टारगेट करेंगे। सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल रिलेशन इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल रिलेशन। जब हम IR पढ़ते हैं, मैं अपने टाइम पे भी जब IR पढ़ता था तो मैं बहुत सारे एजुकेटर को देखता था जो IR के नाम पे बस वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री GS1 के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन IR में आपको खाली टाइमलाइन नहीं पढ़नी है, खाली इवेंट्स नहीं पढ़ने हैं, आपको एनालिसिस करना है। मेरा खुद का ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस रहा था। अब PSIR में जो मैंने थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर पढ़ा, जो IR मैंने समझा, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क समझा, उस फ्रेमवर्क को यूज करके जनरल स्टडीज के लेवल पे मैं आपको IR यहां पे फाउंडेशन बैच में कवर करूंगा फॉर द मेंस एज वेल। ठीक है, अब बात करते हैं लाइव आंसर राइटिंग सेशन की। तो एज यू ऑलरेडी नो कि आपके इस फाउंडेशन बैच में MMP प्लस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। अगर हम मेंस प्रिपरेशन को यहां पे इंक्लूड कर रहे हैं तो मेंस प्रिपरेशन विदाउट आंसर राइटिंग सेशन इज इनकम्प्लीट, राइट। तो आंसर राइटिंग में हम यहां पे आपको राइट स्मार्ट कराएंगे, जहां पे कि आपने पहले भी देखा होगा कि शिविन सर विल टीच यू आंसर राइटिंग टेम्पलेट थ्रू द पास्ट ईयर क्वेश्चन ऑफ मेंस। वंस यू आर डन विद दैट, मोर देन 30 सेशन लाइव आंसर राइटिंग के मैं आपके साथ लूंगा। क्या करते हैं हम इस सेशन में? इन वन सेशन वी विल बी हैविंग 5 क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, 3 10 मार्कर करेंगे और 2 15 मार्कर। क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, मैं आपको क्वेश्चन की डिमांड बताऊंगा एंड आई विल स्टार्ट द टाइमर। 7 मिनट फॉर अ 10 मार्कर आप लिखेंगे लाइव। ऐसे करके मैं आपको 11 मिनट दूंगा 15 मार्कर के लिए भी। तो ओवरऑल 5 क्वेश्चन एक सेशन में हम लिखेंगे। मोर देन 35 सच सेशन इन योर फाउंडेशन बैच आई विल बी टेकिंग। ठीक है, तो आंसर राइटिंग इस तरीके से नहीं होने वाली कि हमने क्लास में जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं वहां पे क्वेश्चन लास्ट में लिख दिया और आपको बोल दिया बच्चों घर से लिख लेना, है ना। दिस इज नॉट हाउ आंसर राइटिंग शुड बी डन। पहले हम राइट स्मार्ट लेंगे और फिर लॉज लेंगे, और लाइव क्लास के अंदर आप हमारे सामने मोर देन 300 क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे इन राइट स्मार्ट एंड लॉज बोथ। Now in this batch I have a multitude of responsibilities with you. Firstly, I will be your elder brother throughout the preparation.
आई विल कीप मीटिंग यू रेगुलरली, ताकि जहां भी कहीं इशू आए वी कैन टॉक, डिस्कस एंड इंश्योर दैट वी आर ऑन द राइट पाथ, एंड वील डू दैट थ्रू रेगुलर ग्रुप मेंटरशिप सेशंस. एकेडमिक्स की बात करें तो प्रीलिम्स में 2 सब्जेक्ट हैं जो बहुत इग्नोर्ड हैं. नाउ दीज कम नेचुरली टू मी specifically because of my medical background, and they are science and technology and environment. पूरा साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट मैं आपके साथ इस बैच में करने वाला हूं. मेंस की बात करें तो GS3 के सारे सब्जेक्ट्स, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट, द एंटायर GS पेपर 3 I'll do with you. And answer writing में the course that produces the most toppers every year, Write Smart, I'll do with you. राइट स्मार्ट में हम 7 यूपीएससी के 300 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखेंगे और हम सोचना सीखेंगे. अब इन सारी चीज़ों में मेरी एक ही अप्रोच है. आप में से कई लोगों की बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉलेज होगी, कई लोगों की कम होगी, बट व्हेन यू कम टू लर्न फ्रॉम मी आई अज्यूम दैट यू आर अ ब्लैंक स्लेट. तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम उस लेवल तक जाएंगे कि यूपीएससी के क्वेश्चंस भी हमें आसान लगे. And that is the job I'm here to do. Now, like I explained to you in the roadmap, let's take a look at the schedule. We start with making our foundation. तो जो हमारे basic subjects हैं, history, economy, geography, polity, science and tech, environment, we do that all together first. अब एक चीज़ है जिसमें बहुत बच्चे struggle करते हैं और वो है CSAT. And even CSAT we include here. Now I understand that a lot of college people will join this, जो अपने final year में होंगे. CSAT की क्लासेस में थोड़ा सा एफर्ट कम लगता है, तो जब आप अपने फाइनल ईयर के एग्जाम्स दे रहे होंगे तब आप CSAT पढ़ रहे होंगे, एंड यू विल हैव टाइम टू इनकॉर्पोरेट योर कॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल. ऑल्दो हम सबको पता है हम कॉलेज एग्जाम कैसे पास होते हैं, बट जब कॉलेज का एग्जाम पास हो जाए उसके बाद अगले 6 months आई एक्सपेक्ट एब्सोल्यूट हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन फ्रॉम यू, बिकॉज दैट इज व्हेन वी आर गोइंग टू लर्न मेंस. जो MMP प्लस है वो पूरा इस कोर्स में इंक्लूडेड है. Like I said, we will not leave you hanging even after that. In Jan, Feb and March, we'll cover current affairs of the last 2 years completely. और यहाँ पर हम live MCQ solving sessions भी करेंगे ताकि हमारी prelims की practice भी top notch हो. Hello everyone, I'm Ram Mohan Pandey, your CSAT coach. And मैं आपको बताऊं, आपने CSAT का पेपर तो आप देख ही रहे हैं कि CSAT का पेपर ईयर बाय ईयर इतना टफ होता जा रहा है कि आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो CSAT कैन शैटर योर UPSC ड्रीम एनी ईयर. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है कि लाइक एवरी टाइम दे आर स्कोरिंग 100+ मार्क्स इन GS पेपर 1, बट CSAT की वजह से पेपर 2 जो है वो 66 भी नहीं आ पा रहे हैं और प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है. बट दे आर वेरी मच मेंस रेडी, दे आर वेरी मच इंटरव्यू रेडी, बट एक्चुअली प्रीलिम्स स्टेज ही क्रॉस नहीं हो रही है. तो प्लीज CSAT को आप लाइटली मत लीजिए. और ये हमारा 2028 का फाउंडेशन बैच है गाइस, और यहाँ पे हमको ज्यादा टाइम भी मिलेगा और हम लोग CSAT बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. मैं आपको बताऊं ज्यादा टाइम का एडवांटेज क्या है कि जैसे मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि लॉन्ग टर्म बैच के थे हमारे पास, एंड उन स्टूडेंट्स का स्कोर इंप्रूवमेंट देख के मैं खुद अमेज्ड हो गया. मैं आपको बताता हूँ, एक स्टूडेंट है दीपांशु जिंदल, AIR 38. वो हमारे पास जब आए थे तो उनका स्कोर 62 था, और जब हमसे क्लासेस किए उन्होंने तो उसके बाद उनका स्कोर CSAT में 142 आया. ठीक है एवरीवन, एंड AIR 38. तो मैं आपसे इसलिए कहना चाहूंगा कि CSAT को अगर आप टाइम देंगे ना तो यू कैन स्कोर ट्रिमेंडसली वेल, एंड CSAT एक बार आप अच्छे से कर लीजिए, फिर उसके बाद आप जितने भी एग्जाम्स देते जाएंगे आपका हमेशा क्लियर होता जाएगा. सो अच्छे से पढ़िए गाइस. हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रणय अग्रवाल है एंड मैं आपको GS पेपर 1 का जो इंडियन सोसाइटी पोर्शन है उसको टैकल करूंगा. अगर अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं, I have been teaching sociology optional to UPSC aspirants for more than 15 years, and I have mentored several successful candidates in this long career. So एक reasonable expertise है मेरी society related issues में, and particularly Indian society को लेके. मैं इंटरनेशनल सोशोलॉजिकल एसोसिएशन और जो इंडियन सोशोलॉजिकल एसोसिएशन है उनसे भी एसोसिएटेड हूँ, उनकी रिसर्च कमिटीज से. So I can claim a decent expertise in society related issues, specifically Indian society. अगर मैं आपको इंडियन सोसाइटी का जो पोर्शन है उसके बारे में बताऊं, देखिए आप लोग 2028 का जो अटेम्प्ट है वो दे रहे हैं. Over the years what we have seen that the importance
the weightage of society related questions in civil services exam has been increasing. ये ट्रेंड पर्टिकुलरली हम देखते हैं लास्ट कुछ सालों में, एंड कन्वेंशनली फॉर मोस्ट यूपीएससी एस्पिरेंट्स सोसाइटी का पोर्शन हैज बीन आल्सो अमंग्स द मोस्ट निग्लेक्टेड, राइट? तो दैट इज वन थिंग आई वांट टू रिक्वेस्ट यू टू रेक्टिफाई टू इंप्रूव द चांसेस ऑफ योर ओन सिलेक्शन इन द एग्जाम. इसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टैकल करेंगे. वी विल टॉक अबाउट कास्ट सिस्टम, untouchability, tribal communities in India and tribal development issues. We will talk about regional disparities. We will talk about poverty, urbanization, globalization, women's issues. We will be tackling very comprehensively the various societal issues. Also friends, apart from being important, Indian society को समझना बहुत interesting भी है, right? तो for example, जब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कास्ट, विच इज अ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड सोशल अरेंजमेंट, हाउ इट इज सर्वाइविंग टिल दिस डेट. हैज इट चेंज्ड इन एनी सिग्निफिकेंट वे? हाउ डज इट इम्पैक्ट योर एंड माई लाइफ इन 21st सेंचुरी? तो ये सारी चीजें, या फिर अनटचेबिलिटी को लेके हम जब बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर, हाउ बोथ वर कमिटेड टू tackling and wiping out untouchability, but both had very different approaches to addressing the issue, right? या हम जब समझने की कोशिश करते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटीज इतनी बैकवर्ड क्यों हैं, उनका हाउ आर ट्राइबल्स डिफरेंट फ्रॉम नॉन ट्राइबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, हाउ आर दे डिस्टिंक्टिव. या जब हम समझने की कोशिश करते हैं हाउ ग्लोबलाइजेशन, एक कंटेम्पररी फिनोमेना, हाउ इट हैज अफेक्टेड ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर कलेक्टिव लाइव्स. क्या ग्लोबलाइजेशन से हमारे पॉलिटिक्स पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या फर्क पड़ा है? आप लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स होने जा रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन का एक ह्यूज इकोनॉमिक इंपैक्ट है, वो समझेंगे, बट ग्लोबलाइजेशन का केवल इकोनॉमिक या एडमिनिस्ट्रेटिव इंपैक्ट नहीं है. ग्लोबलाइजेशन का फैमिली सिस्टम पे क्या इंपैक्ट है? इज इट अफेक्टिंग रिलीजन इन इंडिया इन एनी वे? कास्ट सिस्टम या सोशल इनइक्वालिटी पे भी फर्क पड़ रहा है क्या ग्लोबलाइजेशन की फोर्सेस से? ये सारे इंटरेस्टिंग इश्यूज को हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे. सिंस यू आर अटेम्प्टिंग 2028, you have the advantage of time on your hands. So my suggestion will be use this time well, give Indian society portion the attention it deserves in preparation. देखिए ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए आप लोग घंटों प्रिपेयर करते हैं, घंटों लेक्चर्स देखते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, किताबें पढ़ते हैं. इंडियन सोसाइटी के लिए, टू पुट इट ब्लंटली, बहुत सारे कैंडिडेट्स लिटरली सोचते हैं, मुंह उठा के चले आते हैं कि जो भी पता है उससे काम चलाऊ सा हो जाएगा, पर उससे मार्क्स नहीं आते. टू सिक्योर बेटर मार्क्स यू नीड अ मोर न्यूआंस्ड एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, which I hope with our interaction in classes you will be able to develop. So wish you all the best, do well, and I look forward to meeting you during the course. Hi everyone, so my name is Chisleen Kaur, and as all of you are gearing up for 2028 attempt, I will be helping you out in two things. First and foremost is live MCQ solving. As you know, prelims is becoming highly unpredictable and competitive, having been through the journey myself for successive 6 years and having been able to clear it, also appearing this year. So I will be helping you out with my recent exam experience as to how to solve prelims questions in exam pressure situations. I will not only tell you how to overcome your mistakes, but also in the topics where you have not studied, how to arrive at the answer using the pre-existing knowledge that you have. That is known as the MCQ solving aptitude, and that is the endeavor that I have with you. And secondly, and something very close to my heart, is mentorship. So you and I will meet, every fortnight mostly, where you will, you and I will have a discussion on different aspects of this examination. जो भी आपके basic questions होते हैं, basic to advanced questions, one by one across the sessions we will be discussing them, carefully structured and curated sessions that we will have, and then I will be mentoring you as well in the course. So looking forward to see you all, and I will see you in the classes. कौन होते हैं वो लोग जो यूपीएससी इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हैं?
पता है ऐसे बहुत सारे टॉपर्स हैं जिनके मेंस में भले उतने अच्छे मार्क्स ना आए हों, पर क्योंकि उनके यूपीएससी इंटरव्यू में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स आए, उन्हें अपनी मनमर्जी की सर्विस मिल गई। अब कैसे की होगी उन्होंने यूपीएससी इंटरव्यू की तैयारी? कोई अलग कोर्स लिया था क्या, या मेंस के बाद कोई अलग से उसके लिए तैयारी करनी होती है? एक्चुअल में यूपीएससी इंटरव्यू की तैयारी उसी दिन स्टार्ट हो जाती है जिस दिन आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको अपना यूपीएससी का अटेम्प्ट लिखना है। जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, जो प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ते हैं, जो मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं, एथिक्स पढ़ते हैं, एसे पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें मिलाकर आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प करती हैं। लेकिन कैसे हेल्प करती हैं? ये हेल्प करती हैं अगर आप उससे एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्ड करना सीख जाते हैं, और वो सीखना वो एक स्किल सेट है। इसीलिए हम ट्राई करते हैं कि हम अपने फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स को वो स्किल सेट पहले दिन से ही सिखाते हैं। इससे उनको सिर्फ यूपीएससी इंटरव्यू में हेल्प नहीं मिलती, इससे उनको मेंस के आंसर्स अच्छे से हैंडल करने में हेल्प मिलती है। इससे उनको प्रीलिम्स की अनप्रेडिक्टेबिलिटी, जिसके बारे में इस साल सब लोग बात कर रहे हैं, ये हैंडल करने में हेल्प मिलती है। इससे उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी बेटर होती है। इससे वो अपनी प्रिपरेशन को लेकर कॉन्फिडेंट होते हैं। ये चारों चीज़ें एक स्किल सेट है। ये कैसे बिल्ड होती है? ये बिल्ड होती है जब हम इंटरव्यू ओरिएंटेशन, इंटरव्यू रिलेटेड पीओवी उसको बिल्ड करते हैं। और फाउंडेशन बैच में हम ट्राई करते हैं कि आपकी तैयारी के फर्स्ट डे से आपके पास ना केवल प्रीलिम्स और मेंस की गाइडेंस हो, बल्कि इंटरव्यू की भी गाइडेंस हो। I am Sajal Singh and I have mentored 600 plus UPSC rankers, including AIR1, and I will be your head of mentorship. So basically, the mentorship in this foundation course, it has two versions. One is the group version, group mentorship version, where you will be allocated to a different kind of, what we call as groups. So there will be a session जहाँ पे 10-12 लोग मेंटर के साथ डिस्कस करेंगे कोई इशू, लेट्स से हाउ टू मेक नोट्स, हाउ टू मेक टाइम टेबल, हाउ टू रिमेन कंसिस्टेंट, एंड देन देयर इज अ component of one-to-one mentorship. That is part of the GS Foundation Plus. In the one-to-one mentorship, what we will do is we will allocate you a interview given mentor, and that interview given mentor will be with you till next year mains, and he will be making a smart plan for you, making a timetable for you. Whatever you are doing in this preparation journey, you can get it reviewed from him, right? Plus, he will also be ensuring that you remain consistent and accountable through daily accountability and productivity sheet. इसके अलावा I will take 30 sessions on answer writing, on note making, on prelim solving strategies. I will take 30 sessions where whatever I have taught these 600 plus rankers, I will be teaching you in this foundation one-to-one sessions. ठीक है ना? So this is how the mentorship will work in this foundation 2028. आज से ही हम इंश्योर करेंगे कि आप सही ट्रैक पे रहें, और मेंटर आपके लिए एक जीपीएस का काम करेगा, इंश्योर करेगा कि आप सही ट्रैक पे रहें, इंश्योर करेगा कि आप अपनी प्रिपरेशन में जो भी आपके पास 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे हैं, कि वो बेस्ट तरीके से यूटिलाइज हो सके। सो नाउ देखिए, जब भी आप फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करने की सोचते हैं तो हमेशा आप कंपेयर करते हैं एक इंस्टीट्यूट को दूसरे इंस्टीट्यूट से। तो डेफिनेटली आप सारथी आईएएस के फाउंडेशन बैच को बाकी इंस्टीट्यूट से कंपेयर करेंगे, और करना भी चाहिए। तो मैं आपका काम थोड़ा आसान कर देता हूं। देखिए, सारथी आईएएस के फाउंडेशन बैच में क्या यूनिक है इन कॉन्ट्रास्ट टू ऑल अदर इंस्टीट्यूट, ये मैं आपको बता देता हूं। यूनिक फीचर, सबसे पहले यू नीड टू ऑब्जर्व दिस थिंग, मेंस कंटेंट। देखिए, जो आप फाउंडेशनल लेवल पे कंटेंट पढ़ते हैं वो प्रीलिम्स के लिए यूजफुल हो सकता है, लेकिन मेंस आप उससे कभी क्रैक नहीं कर पाएंगे, है ना। इवन आज के टाइम में मैं आपको ये बोलूंगा कि मेंसिफिकेशन ऑफ प्रीलिम्स हो गया। प्रीलिम्स में भी यूपीएससी मेंस के टॉपिक पूछ रहा है, तो यहां पे बाकी इंस्टीट्यूट में आपको डेडिकेटेड मेंस लेवल का कंटेंट फाउंडेशन प्रोग्राम में नहीं मिलेगा। यहां पे सारथी आईएएस में GS1, GS2, 3, 4 एंड एसए, है ना, दिस वी विल इंक्लूड विद इन दी फाउंडेशन बैच। डेडिकेटेड मॉड्यूल मेंस लेवल कंटेंट हम आपको यहां प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। सेकंड, PYQ बेस्ड आंसर राइटिंग। एवरीबॉडी सेज पास्ट ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई इंस्टीट्यूट अपने फाउंडेशन बैच में आपको मेंस के सारे PYQ प्रैक्टिस नहीं कराएगा। कोई हो तो आप दिखा दो, मुझे गारंटी है इस बात की, ठीक है। लेकिन यहां पे सारथी आईएएस में PYQ आंसर राइटिंग इन राइट स्मार्ट,
क्योंकि हमने एक डेडिकेटेड मॉड्यूल इवॉल्व किया है जो PYQ की आंसर राइटिंग करवाता है, विच इज पार्ट ऑफ दिस फाउंडेशन बैच। थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्रेडिबल फैकल्टी। देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस क्रेडिबल फैकल्टी, जो टर्म हमने नॉर्म किया इस पूरे यूपीएससी कोचिंग इकोसिस्टम में, बाय क्रेडिबिलिटी व्हाट वी मीन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। एक इंसान जिसने खुद ने इस एग्जाम को दिया है, प्रीलिम्स क्रैक करा है, मेंस क्रैक करा है, इंटरव्यू क्रैक करा है, सर्विसेज में रहा है, अगर वो आपको पढ़ाएगा तो एटलीस्ट जब भी वो आपको पढ़ा रहा है तो वो सही चीज पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, राइट? दिस इज व्हाट वी मीन बाय क्रेडिबल फैकल्टी। सारथी आईएएस की टीम अगर आप देखेंगे, डॉक्टर शिविन इज सिलेक्टेड, हिमांशु खत्री सर सिलेक्ट हुए हैं, उसके बाद विश्वजीत सर हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, एंड अदर एजुकेटर एज वेल एज मेंटर एटलीस्ट इंटरव्यू अपीयर्ड है, ठीक है? दिस इज व्हाट आई मीन बाय क्रेडिबल फैकल्टी। इसके बाद बात करते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जहां पे मेरा पार्ट था कि हम यहाँ पे मोर देन 30 लाइव आंसर राइटिंग सेशन करेंगे। तो आंसर राइटिंग खाली ऐसे नहीं है कि क्लास में कंटेंट दिया और आप जाके घर से क्वेश्चन लिख लो, नो, हम क्लास में इन लाइव आंसर राइटिंग सेशन में 35 सेशन रखेंगे, 5 क्वेश्चन हर सेशन में लिखेंगे, ठीक है? इसके बाद प्राइसिंग की बात आती है, ठीक है? अगर आप ऑफलाइन से कंपेयर करेंगे, ये फीचर ऑफलाइन वाले भी आपको नहीं देते, है ना? इवन एट द प्राइस जहां पे कि 2 लाख प्राइस होता है, 1.5 लाख प्राइस होता है, हम यहां पे आपको ये सारे फीचर दे रहे हैं विद अफोर्डेबल प्राइसेस, जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं कि क्या प्राइसेस हैं, ठीक है? तो दीज आर द यूनिक फीचर ऑफ सारथी आईएएस फाउंडेशन प्रोग्राम। सो एज आई टोल्ड यू दैट द प्रोग्राम विल बी अफोर्डेबल। हम आपको इस फाउंडेशन प्रोग्राम के 2 वर्जन ऑफर कर रहे हैं, वन इज फाउंडेशन, अदर इज फाउंडेशन प्लस, एंड दीज आर द प्राइसेस। इसमें बस एक ही डिफरेंस है, किसी फोमो में आने की जरूरत नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज कि फाउंडेशन प्रोग्राम में ग्रुप मेंटोरशिप है, 40 to 50 पीपल का एक ग्रुप हम क्रिएट करेंगे और वहां पे जूम में हम आपको मेंटोरशिप देंगे। और यहां पे फाउंडेशन प्लस में 1-on-1 मेंटोरशिप है। यहां पे एक डेडिकेटेड मेंटर आपको मिलेगा, वो मेंटर आपकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेगा, आपके एकेडमिक और नॉन एकेडमिक इशू के लिए अवेलेबल रहेगा, ठीक है? यहां पे जितने भी मेंटर साथी है इसमें आपके साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं, they will be having at least interview experience. This is the criteria that we have set up for hiring in the mentorship vertical, ठीक है? तो यहां पे dedicated 1-on-1 mentor रहेगा और यहां पे group mentorship रहेगी। Rest of the features are completely same, ठीक है? तो these are the prices. Now अगर इसके बाद भी आपको कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है, इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर कोर्स ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है ना? प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूपीएससी जितना डिफिकल्ट हो गया है, यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जितने मेंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2 ईयर इज द राइट टाइमलाइन टू एक्चुअली स्टार्ट योर यूपीएससी सीएससी जर्नी। प्रीलिम्स से 2 साल पहले अगर आप प्रीलिम्स की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं और प्रीलिम्स देने जा रहे हैं मेंस की जर्नी को कंप्लीट करके, then you have the higher chances for this election. Thank you very much. All the best. See you next time.